Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to machine learning. So as you know that we are about to begin our discussion on decision trees. So therefore I thought that maybe I should record a supplementary lecture to go over some of the terminology around trees and the tree data structures, and also some of the properties of trees that might be useful in the discussion on decision trees. I know that because data structures is not a prerequisite of machine learning right now, so therefore आप में से हो सकता है ऐसे students हों जिन्होंने data structures का course ना पढ़ा हुआ हो. So when you will study data structures, or if you have already studied data structures, so ये सब कुछ आपके लिए already known होगा, बहुत तफसील से सब कुछ पहले देख चुके होंगे. But if you have not, then just go over this video, and I hope कि इसमें हम सारी relevant चीज़ों को cover कर लेंगे. If there is anything left, you can always cover it on your own. छोटी मोटी चीज़ें हैं, terminology ही है, but let me just try to give you a jump start by covering as much of it as possible in this one video. So let's begin. So a tree is a data structure which is basically a more specific form of another data structure which is known as a graph. So let's begin our discussion by discussing graphs, and then from graphs we will make our way into trees. And many of the things that we'll learn about graphs will also transfer over to trees. So by the way, this is not a very comprehensive discussion. I'll just be discussing the things which are relevant to our upcoming discussion on decision trees. बहुत ज़्यादा मैं उसकी सारी properties obviously नहीं cover कर रहा, but I'll just try to cover the ones which are important for us. So let's quickly talk about graphs. So a graph is composed of two types of things: nodes and edges. So for example, let me draw a graph for you. So I'm drawing here a few nodes. So these are my nodes. Let me just name them A, B, C, D, E and F. So जब हम कभी graphs को use करते हैं, let me give you a concrete example to basically just drive the concept home कि हम इनको एक use case में आपको बता देता हूँ. So assume करें कि each node here corresponds to a city. So A could be Lahore, and B could be Islamabad, and C could be Karachi, and whatever. So these are like cities or places or locations. And now I am trying to basically map the interconnects between cities in the form of a data structure. So मैं ये assume करता हूँ कि जी A और B जो है वो एक road से connected है, और B और C भी road से connected है, और B और F भी road से connected है, और F और E भी road से connected है, और let's assume कि D और B भी road से connected है. Right? So now what we have formed here is known as a graph. And in this graph, this thing is known as a node. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodes, and these things are known as edges. जब हम trees पढ़ रहे होंगे तो हम edges को branches भी कह देते हैं, but let's stick to one terminology. So nodes and edges, right? So edges here in our example, in our particular use case जिसको हम देख रहे हैं, उसमें edges हमारे roads हैं, और जो nodes हैं वो हमारे let's say cities हैं. Now this type of a graph could be used to figure out things like, for example, अगर मैंने A से E तक जाना है, तो then what's the viable pathway? So we can see here कि आप A से directly E नहीं जा सकते, कोई road network नहीं है, so आपको A से B जाना पड़ेगा, B से F जाना पड़ेगा, और F से E जाना पड़ेगा. Right? So that's a pathway of going from A to E. So यहाँ पे आपने concept path का भी देख लिया. So path is basically a sequence of nodes that you need to traverse in order to get to a point A and B, from point A to point B, let's assume. So अगर मैं let's say A से लेकर E तक का pathway चाहता हूँ, तो वो path होगा A, B, F, E. So I hope this is clear, right? So अब ये हमारा पहला example हो गया एक graph का. Now a graph could also have what we call cycles. So here I'm basically introducing a loop in the graph. So you can go from A to B, B to D, D to A to B, B to D, D to A, and so basically now you can traverse this as many times as possible. So मतलब जितना आप चाहें आप इसको traverse बार बार कर सकते हैं. So this is known as a cycle or a loop, and a graph that contains cycles is known as a cyclic graph. So it's a cyclic or cyclic graph. ठीक है. So ये हमारे पास अब एक, so हमने अब तक क्या सीख लिया? Graph, nodes, edges, paths, and what's a cyclic graph. जिस graph के अंदर cycles नहीं होते उसको हम कहते हैं acyclic graph.
सो एन एसाइक्लिक ग्राफ जो वो इससे पहले था, अगर मैं इसमें से साइकिल्स रिमूव कर दूं तो इट्स गोइंग टू बिकम एन एसाइक्लिक ग्राफ, और अगर मैं इसमें साइकिल एक भी साइकिल हो किसी ग्राफ के अंदर तो मैं उसको साइक्लिक ग्राफ कहूंगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो नाउ इन दिस केस अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट्स द पैथ फ्रॉम ए टू ई, so you can even give me a path like this in a cyclic graph, a path from A to E, जबकि कोई और restriction नहीं है path के ऊपर, the path could be A to B, B to D, D to A to B, B to F, and F to E. This is a perfectly fine path. It's not a good path. It's like आप लाहौर से इस्लामाबाद जाना चाह रहे थे और आप let's say डिफेंस से निकल रहे थे, और आप डिफेंस से let's say I don't know ठोकर न्याज बेग गए और फिर वापस किसी रास्ते से होते हुए डिफेंस आए, और ये आपने 4 दफा किया और फिर उसके बाद आप मोटरवे पे गए इस्लामाबाद जाने के लिए। यू कुड हैव डन दैट, देयर माइट बी अ रीजन फॉर यू टू डू दिस, बट एंड इट्स अ वैलिड पैथ, it's not the shortest path. So there is a concept of a shortest path from A to E, जो कि A B F E होगा, and or it could be A D B F E. So हमारे पास दो clear path तो अब नजर आ रहे हैं, A D B F E. So this is A D B F E, and the other path from A to E without any cycles would be A B F E. दो ऐसे paths मौजूद हैं जिसमें cycles नहीं हैं, and out of these this is the shortest path. So there is a concept of a shortest path, जिसके लिए अब आगे जाके जब आप data structures पढ़ेंगे तो you will be looking at many algorithms for finding the shortest path between two nodes or between all nodes, all pairs of nodes and so on. ठीक है जनाब, तो now you understand the concept of cycles, cyclic graphs, and basically nodes and edges. Okay, अब एक concept इसमें और ऐड करते हैं. Let me basically just draw a new tree, new graph for you here. So let's assume मैं ये let me just draw a few nodes and let me just connect a few nodes. So अभी तक हमने जो पहला ग्राफ देखा है उस ग्राफ के अंदर जो edges हैं उन पे कोई direction नहीं थी. So you could have gone from A to B and you could also gone from B to A. There was no directionality involved. Now when a graph does not have directionality involved in its edges or specified on its edges, then it's known as an undirected graph. Undirected graph. So it means that there is no directionality. You can go from any two nodes which are connected with each other. आप उनमें से एक से दूसरे तक जा सकते हैं. So if you connect A with B, you can go from A to B and B to A. On the other hand, if your graph is directed, then the edges would specify the direction in which you can move. So in this graph, for example, you can go from A to B, but you cannot go from B to A. There is no path from B to A. It obviously can have a second path like this. So now you have a path from A to B and a path from B to A. So now basically in this directed graph, you have to specify. So ये एक डायरेक्शन में जाने की सड़क है. फर्ज करें एक वन वे सड़क है लाहौर से इस्लामाबाद तक. इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस्लामाबाद से लाहौर भी आ सकते हैं. So इस्लामाबाद से लाहौर की आपको एक और वन वे सड़क बनानी पड़ेगी. So now essentially if you look at your motorway, it has two one-way roads. बेसिकली साइड बाय साइड, एक लाहौर से इस्लामाबाद जा रही है और एक इस्लामाबाद से लाहौर आ रही है. सो बेसिकली दो डायरेक्टेड एजेस हैं आपके पास रादर देन वन अनडायरेक्टेड एज होने की, जिसका मतलब ये होता है कि एक ही सड़क होती है जिस पर दोनों तरफ की ट्रैफिक मूव कर रही होती है विदाउट एनी साइड्स और एनीथिंग. सो योर रोड नेटवर्क्स इन दैट सेंस आर ऑलवेज डायरेक्टेड. ठीक है जी. सो अब अगर मैं डायरेक्टेड ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करूँ, सो एंड फॉर एग्जांपल मैं इस किस्म का एक ग्राफ ड्रॉ कर दूँ, एंड लेट मी से A B C D E and F, and if I ask a question about a pathway from let's say A to F, if there is a path that exists from A to F, and I want you to pause the video and think about this, if there is a path that exists from A to F, I hope कि आपने pause किया, इस पे सोचा. So if you see here, there is a path from A to B, there is a path from B to C, but there is no path from C to D. So अब C से D नहीं जा सकते, because you C से D नहीं जा सकते, and there is a path from D to E and E to F, so therefore there is no path from that exists from A to F. ठीक है. So in this directed graph, you do not have a pathway that exists from A to F. You have a path from A to B and A to C and B to C and so on, D to E,
E to F and D to F, ये सारे pathways हैं, लेकिन यहाँ पर अब ये गारंटी नहीं है कि reciprocate भी होगा, reverse direction के अंदर भी path available होगा. You need to have an explicit path in the other direction for it to support the other path. ठीक है जी. So अब आपके पास मैंने दो तरह से categorization कर दी है. एक मैंने कर दी है cyclic and acyclic की, और एक मैंने कर दी है directed and undirected की. So अब आपके पास जो है बेसिकली ये कुछ टर्म्स आ गई हैं. अब मैं इस पॉइंट पर ये कर सकता हूँ कि बेसिकली इन टर्म्स को यूज करके आई कैन डिफाइन अ ट्री फॉर यू. सो लेट मी डिफाइन अ ट्री फॉर यू. A tree is essentially is a directed acyclic rooted graph. इस सब कुछ में से आपको सिर्फ एक टर्म नहीं पता, rooted. You do understand that a tree is a directed acyclic graph. ठीक है. So अब tree भी दो तरह के होते हैं. There are rooted trees and there are unrooted trees. So you can have, essentially you can say that a tree is a directed acyclic graph. That's the bare minimum definition. और इसको हम short form में directed acyclic graph को DAG लिखते हैं. ठीक है. So a tree is a DAG. और जितने trees के साथ हम deal कर रहे होंगे वो सारे के सारे rooted DAGs होंगे. रूट का क्या मतलब है ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ. दैट आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट स्लाइड. बट हियर नाउ एट लीस्ट यू नो दैट अ ट्री वुड ऑलवेज बी अ डायरेक्टेड स्ट्रक्चर. इट वुड बी एन एसाइक्लिक स्ट्रक्चर, उसमें साइकिल्स नहीं होंगे. एंड इट वुड बी अ ग्राफ, सो उसके नोड्स और एजेस होंगे. ठीक है. नाउ दैट यू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स मूव ऑन एंड ट्राई टू एंड सी व्हाट अ ट्री इज एंड व्हाट इट्स कंप्राइज्ड ऑफ एंड सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज. Alright जी, so let me draw a tree for you. So here you see your first, in fact not your first, you have already seen k-dimensional trees, but let me draw a tree for you, the first at least in this discussion. So here is a tree for you. और अब इसको you can clearly see here the graphiness of the tree. So you see here the nodes. So you have the nodes just like in the graphs. So this is one node and you have the other nodes, and then you have the edges. So nodes और edges उसी तरह मौजूद हैं. ट्री के अंदर एक assumption होती है, और यूजुअली, और अब मैं कई जगहों पर ना आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि टर्मिनोलॉजी में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी भी नहीं है अक्रॉस लिटरेचर. समटाइम्स इवन टर्मिनोलॉजी and the way we represent things, it changes, and it also changes between if you're looking at it from graph theory perspective or if you're looking at it from computer science perspective. तो इसमें भी चीज़ें बदल जाती हैं. But anyhow, I'll just give you one set of terms and then you can basically relearn another set of terms जब कभी वो आपके सामने present होती हैं. But here you can see कि ट्री को यूजुअली हम टॉप डाउन बनाते हैं. और टॉप डाउन का मतलब है कि नॉर्मली जो आपका दुनिया में ट्री होता है ना, वो जैसे कि मैंने आपको पहले उसमें भी शो किया था. सो दुनिया में जो यूजुअल ट्रीज हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं. उनकी रूट्स नीचे होती हैं और उनकी ब्रांचेस ऊपर होती हैं. जो ट्रीज हम यूजुअली बनाते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर वो उल्टे बनाते हैं, जिसमें रूट्स ऊपर की तरफ होती हैं और ब्रांचेस नीचे की तरफ होती हैं. ये छोटी सी चीज़ बस ध्यान में रखिएगा. ऑलराइट. यहाँ पर हमेशा एक चीज़ एज्यूम्ड होती है कि देयर इज़ अ हिडन directionality on all of these edges. So there is a hidden directionality. ये directionality हम show नहीं करते. Usually जब आप trees देखेंगे तो उस पर ये arrows नहीं लगे होंगे, लेकिन ये हमेशा assumed होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ ये arrows लगे हुए हैं. Because remember, tree is a rooted, directed, acyclic graph. अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी terms समझाना शुरू करता हूँ tree के बारे में, ताकि आपको चीज़ें मज़ीद clear होती जाएं. So let me give them a few names: A, B, C, D, E, F, G, H, and let's say I. Alright, so in this tree, we see a few constructs. For example, there is a parent-child relationship. So जब भी किसी node के directed edges किसी दूसरे node की तरफ जा रहे होते हैं, तो जिससे directed edge निकल रहा है उसको हम parent कहते हैं, और जिनकी तरफ जा रहा होता है उनको हम child nodes कहते हैं. सो इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि ए के चाइल्ड कौन है, ए के चिल्ड्रन कौन है, बी और सी. बी के चिल्ड्रन कौन है, डी और ई. ई का चाइल्ड कौन है, आई. सी का चिल्ड्रन कौन है, एफ, जी एंड एच. एच का चाइल्ड कौन है, कोई भी नहीं. सो एच डज नॉट हैव आउटगोइंग डायरेक्टेड एजेस, सो एच डज नॉट हैव एनी चिल्ड्रन. ठीक है. ए
in this case does not have any parents. So A का कोई parent नहीं है. In a tree, there is just one node which does not have a parent. So in a tree, there is just one node which does not have a parent. That node is known as a root. That node is known as the root node. So root node is the node which does not have a parent, or in other words, root node is the node that does not have any directed edge coming into it. Sometimes इसको show करने के लिए कि root है, इस तरह का edge बना दिया जाता है, लेकिन ये edge किसी node से नहीं आ रहा होता. So it's not coming from another node, so therefore इसका कोई parent नहीं है. ये एक इसको हम root node कहते हैं. Similarly, tree के अंदर वो सारे के सारे nodes जिनके कोई children नहीं होते. So let me use a different color so you can see them here, 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 here and here. इनको हम leaf nodes कहते हैं. इनको हम leaf nodes कहते हैं. So leaf nodes के कोई children नहीं हैं और root का कोई parent नहीं है. So can we have a case where a node is both a leaf and a root? Yes. So a node like this. So it's a tree. इस ट्री के सिर्फ एक ही नोड है और यही इसका रूट है और यही इसका लीफ है. सो इसमें नोड ही सिर्फ एक है. सो ऑब्वियसली इट्स पॉसिबल. ठीक है जी, क्लियर हो गया. थोड़ी सी टर्म्स और समझ लेते हैं, बहुत आसान सी हैं क्योंकि बड़ी रियल लाइफ से मिलती जुलती हैं. सो यू हैव सीन के ए इज अ पेरेंट ऑफ बी एंड सी. बी एंड सी आर ईच अदर्स सिबलिंग्स. बहन भाई होते हैं ना, तो ये एक ही पेरेंट की औलादें हैं, बी और सी, तो ये सिबलिंग्स हैं. सिमिलरली डी एंड ई आर सिबलिंग्स, एफ जी एंड एच आर ऑल सिबलिंग्स. ठीक है. सो नाउ यू सी द रिलेशनशिप ऑफ सिबलिंग्स. यू हैव सीन चिल्ड्रन, यू हैव सीन पेरेंट्स. अच्छा, अब बिकॉज वी आर डीलिंग विद कंप्यूटर साइंस, तो हमारे पास हम इसको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रूट ऑफ द सब ट्री of any node is basically the child of that node. So मैं for example, मैंने ये कहा है ना कि B जो है वो A का child है, लेकिन मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि B पर एक दूसरा tree बन रहा है which is a subtree. That's a subtree. और B उसका root है. ठीक है. और जो A के subtree का root है वो A का child है. Similarly, A के जो right subtree का root है, this is the right subtree of A, और उसका रूट सी है वो ए का चाइल्ड है. सो दैट्स अनदर वे ऑफ सेइंग इट. और इस तरह से हम बेसिकली सो वी कैन कंटिन्यू डिफाइनिंग इट. सो ए के नीचे दो सब ट्रीज हैं बी और सी, बी के नीचे दो सब ट्रीज हैं डी और ई पर जो रूट बनी हुई है जिनकी. ई का सब ट्री आई से शुरू होता है, सी का सब ट्री एफ जी और एच से शुरू होते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो अब नाउ इट्स अ रिकर्सिव डेफिनेशन. तो आप समझ सकते हैं बीइंग कंप्यूटर साइंटिस्ट के इसको हम आगे जाकर किस तरह से यूज कर रहे होंगे. ये पूरी रिकर्जन हमारी इसी की बेस के ऊपर बन रही होगी. यू स्टार्ट फ्रॉम अ रूट एंड देन यू गो डाउन टू द लेफ्ट सब ट्री, लेट्स अज्यूम, और वहां पर अगेन यू आर एट अ रूट and then you go to its left subtree and you're again at a root and so on and so forth. So इस तरह से भी हम इसको देखते हैं, but anyhow just to अभी थोड़ा चीज़ों को सिंपल ही रखते हैं और इसको यहीं पे अब समझने की कोशिश करते हैं. अच्छा जनाब, सो हमें कुछ टर्म्स ये वाली समझ में आ गई. अब एक चीज़ की हम बात यहाँ पर और करेंगे और वो हम बात करेंगे एंसेस्टर की रिलेशनशिप की. सो एंसेस्टर, सो ट्री की एक प्रॉपर्टी है कि starting from the root, there is a unique path to every node in the tree. Starting from the root, there is a unique path to every node in the tree. अच्छा, अब ये चीज क्यों हो सकती है? Because remember, a tree is a rooted DAG, directed acyclic graph. अगर ये DAG ना होता तो यूनिक पैथ गारंटी ना होता. सो अब यानी हम फॉर एग्जांपल अगर मैं एक साइकिल अलाउ कर दूं यहाँ पर, तो अब A से F तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, ACF एंड ACGF. बट क्योंकि साइकिल्स अलाउड नहीं है, लिहाजा A से F तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ACF. A से G तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, A से H तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, A से I तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है. सो देयर इज अ यूनिक पैथ which has at least one different node from every other path in the tree, जो कि A से root से किसी भी node तक पहुंचने का है. So there is a unique path that exists from the root to any node in the tree. ठीक हो गया जी? आई होप दिस इज क्लियर. अच्छा जनाब, सो नाउ वी अंडरस्टैंड सेवरल कॉन्सेप्ट्स. हमें काफ़ी चीज़ें, अच्छा हमें एंसेस्टर आपको समझा रहा था. सो व्हेन यू नो अ पैथ, सो लेट मी यूज अ हाइलाइटर हियर. सो व्हेन यू हैव अ पैथ फ्रॉम ए टू लेट्स से आई, इस पैथ में जितने भी नोड्स आएंगे वो आई के
एंसेस्टर्स होंगे। इस पाथवे में जितने भी नोड्स आएंगे वो आई के एंसेस्टर्स होंगे, सो वो इसके डायरेक्ट एंसेस्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल ए के एंसेस्टर्स में मुझे आई के सॉरी एंसेस्टर्स में मुझे क्या क्या नजर आ रहा है? सो आई के एंसेस्टर्स में ई है, बी है और ए है, ये इसके एंसेस्टर्स हैं। वेयर ई इज ऑल्सो द पेरेंट ऑफ आई एंड बी इज द पेरेंट ऑफ ई, सो यानी उसके दादा और परदादा, सो ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये रिलेशनशिप हमारे ट्री के अंदर, यू कैन क्लियरली सी हियर कि वो फैमिली ट्री वाली टर्मिनोलॉजी हमारे पास यहाँ पर साथ साथ आ रही है। ओके, अब यहीं पर हम एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है डिग्री का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये कॉन्सेप्ट ट्रीज के लिए स्पेसिफिक नहीं है, दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली जनरल टू ऑल ग्राफ्स. So let me basically make another tree for you, or let me just make a graph for you first. So let's assume we have these two nodes, A and B, and let's assume I make a third one, C. Now at this point there is a concept called the degree of a node. So in this undirected graph, the degree is simply the number of edges connected to a particular node. So the degree of A is 2, the degree of B is 1, the degree of C is 1. So that's the degree of all three nodes. Okay, now let's assume A is connected to another node D. So now in this case the degree of A would be 3, the degree of B would be 1, the degree of C would be 1. ठीक है, सो ये सिंपली डिग्री का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब इसी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, एंड लेट मी जस्ट से A, B, C, and let's assume D, और अब मैं इस ग्राफ को डायरेक्टेड कर देता हूँ। So now the concept would change a little bit, और अब हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी, एक आ जाएगी इन डिग्री और दूसरी आ जाएगी आउट डिग्री। So the in degree of A is 1. There is one edge coming into A. The in degree of B is 1. The in degree of C is 1. And the in degree of D is 0. कोई नोड, कोई एज उसके अंदर नहीं आ रहा, कोई उसके लिए डायरेक्टेड एज नहीं है जो which is incoming into the node D. In terms of the out degree of A is 2, the out degree of B is 0, the out degree of C is 0, and the out degree of D is 1. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को हम और समझने के काबिल हो गए हैं, और वो कॉन्सेप्ट है द डिग्री ऑफ एन ओवरऑल ग्राफ. And the degree of a graph is basically the highest degree of any of its nodes. So पूरे ग्राफ के अंदर जाएं और हाईएस्ट डिग्री निकाल लें. सो फॉर एग्जांपल इस ग्राफ को अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ को अनडायरेक्टेड ग्राफ को देखें, तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री ऑफ ए इज 3, डिग्री ऑफ बी इज 1, एंड डिग्री ऑफ सी इज 1, एंड डिग्री ऑफ डी इज 1, द डिग्री ऑफ डी इज ऑल्सो 1, राइट. सो इस पूरे के पूरे ग्राफ की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ द एंटायर ग्राफ वुड बी इक्वल टू 3. Similarly, for the directed graph, बिल्कुल उसी तरह से डिग्री ऑफ द ग्राफ इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एनी ऑफ इट्स नोड्स. सो यहाँ पर अगर हम देखें, और बेसिकली हम यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं, द इन डिग्री ऑफ दिस ग्राफ इज बेसिकली द ओवरऑल ग्राफ वुड बी द हाईएस्ट इन डिग्री. सो हाईएस्ट इन डिग्री हमें 1 ही नजर आ रही है, सो इन डिग्री 1 होगी इस पूरे ग्राफ की. आउट डिग्री ऑफ द ग्राफ वुड बी 2, बिकॉज हाईएस्ट आउट डिग्री इसकी 2 है. ठीक है, यूजुअली आप जो लिखा हुआ देखेंगे, अगर मैं इस बात को ट्रीज के ऊपर मैप करूं, और मैं ये आगे बल्कि सो लेट मी बेसिकली पुल अप अ फ्रेश स्लाइड एंड डिस्कस दिस ओवर देयर. सो डिग्री के साथ एक और कॉन्सेप्ट भी क्योंकि लिंक्ड है, तो मैं चाहूंगा कि मैं दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ कवर कर लूं. सो लेट्स अज्यूम, लेट मी जस्ट ड्रॉ अ ट्री फॉर यू. वैसा ही ट्री है जैसे आपने इससे पहले देखा है, बट Let's assume this tree. अब हमें मालूम है कि ट्री इज अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, तो यहाँ पे अब वो डायरेक्शनैलिटी तो वैसे ही क्लियर हो गई है. तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस ट्री में हाईएस्ट डिग्री कितनी है, ठीक है, तो अब यहाँ पे बिल्कुल बड़ा क्लियर सा कॉन्सेप्ट है कि मुझे इन और आउट कहने की जरूरत ही नहीं है. जब मैं डिग्री कह रहा हूँ, सब चलें मैं आपसे और क्लियर कर लेते हैं, जरा पूछ लेते हैं कि हम ए
बी सी। आप अपने आप से सवाल करते जाए, मैं आपसे ना हर नोड की डिग्री पूछने वाला हूँ। जितनी देर मैं ये लिख रहा हूँ उतनी देर आप अपने जहनों में निकाल लें कि डिग्री कितनी है हर नोड की। डी ई एफ जी एच आई। सो अगर मैं आपसे पूछूं ए की डिग्री क्या है, सो ए की डिग्री होगी 2, नोइंग वेरी क्लियरली कि ए की सिर्फ आउट डिग्री ही है। बी की डिग्री क्या है? बी की डिग्री 3 है, 4 नहीं है, 3 है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ आउट डिग्री ही की बात करेंगे जब हम ट्री की कर रहे होंगे। इम्प्लिसिटली हमें मालूम है कि एरो यहाँ भी लगे हुए हैं, यहाँ भी लगे हुए हैं, यहाँ भी लगे हुए हैं, यहाँ भी लगे हुए हैं। तो अब जो डिग्री की बात हो रही है वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन की हो रही है। तो आप ट्री में अक्सर पढ़ेंगे कि कहा जाएगा कि डिग्री नंबर ऑफ चिल्ड्रन को कहा जाता है। दैट्स ऑल्सो ट्रू, but it's not very accurate in the graph terminology. Basically, the accurate way of saying that is कि B की जो out degree है वो 3 है, but yeah, in general we just say it's the degree. So C की degree क्या है यहाँ पर? But this is just true in trees, by the way. जब आप general graph की बात करेंगे, अगर मैं directed edges ना बना रहा होता तो B की degree 4 होती, क्योंकि हमें मालूम है कि directed है, तो लिहाजा we know the context. अच्छा जी, C की डिग्री क्या है? 1, G की डिग्री क्या है? 2, H की डिग्री क्या है? 0, I की 0, F की 0, E की 0 and D की 0. Now there is a concept of arity of a tree, arity of a tree. So for example, हम ये कहते हैं कि एक tree एक m-ary tree है if its degree is m. एक ट्री जिसकी डिग्री m है उसको हम m-ary tree कहते हैं. So for example, ये ट्री जो आपके पास बना हुआ है इसको हम 3-ary या trinary ट्री कहेंगे. अगर मेरे पास एक ट्री इस किस्म का हो, इस किस्म का ट्री हो, लेट्स से मैं इसको ऐसा भी कर देता हूं, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2. सो इसको हम 2-ary या बाइनरी ट्री कहेंगे. एंड यू कैन वेरी वेल सी, बीइंग कंप्यूटर साइंटिस्ट, आपको अभी से शुबा हो जाना चाहिए कि ये शायद हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा. एंड ऑब्वियसली बिकॉज हम बाइनरी चीज़ों में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, दो ऑप्शंस में, तो ये एक बड़ा स्पेशल टाइप ऑफ ट्री है और हम आगे जाके कुछ प्रॉपर्टीज भी इसी ट्री की देखेंगे. सो दैट्स अ बाइनरी ट्री. सो बाइनरी ट्री क्या हुआ? जिसके हाईएस्ट डिग्री ऑफ एनी नोड इज 2, which means highest out degree of any node is 2. जिसका ये भी मतलब है कि इसमें ऐसे नोड्स भी होंगे जिनकी डिग्री 0 होगी, जो लीव्स हैं. इसमें ऐसे नोड्स भी हो सकते हैं जिनकी डिग्री 1 होगी, जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं. और इसमें ऐसे नोड्स भी होंगे जिनकी डिग्री 2 है, जैसे कि हमें यहाँ नजर आ रहे हैं. सो लेट मी जस्ट राइट इट फॉर योर कन्वीनियंस. तो ये सब हो सकते हैं, ठीक है. देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, अ वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट, व्हिच इज कॉल्ड, और मैं अब थोड़ी देर के लिए सिर्फ बाइनरी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं पहले यूँ लिख देता हूँ. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ फुल m-ary ट्री, जिसको मैं अगर ये कहूँ कि फुल बाइनरी ट्री से मैं आपको इस बात को समझाना चाह रहा हूँ, तो ये आपको ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. अ फुल बाइनरी ट्री इज़ वन जिसमें सिर्फ दो किस्म के नोड्स होंगे. एक जिनके दो चिल्ड्रन हो, यानी जिनकी आउट डिग्री 2 हो, और दूसरा जिनका कोई चाइल्ड ना हो. सो हम अगर दो चिल्ड्रन वाले नोड्स को n2 कह दें और नो चाइल्ड वाले नोड्स को n0 कह दें, तो इसमें सिर्फ इन दो तरह के नोड्स होंगे, n1 नहीं होंगे. यानी अब ये वाली चीज़ें अलाउड नहीं होंगी आपके फुल बाइनरी ट्री में. सो फुल बाइनरी ट्री किस शक्ल का होगा? फिर फुल बाइनरी ट्री इस शक्ल का होगा. सो दिस इज अ फुल बाइनरी ट्री. इस डेफिनेशन ऑफ फुल बाइनरी ट्री में एक बात और ऐड की जाती है, और वो बात ये ऐड की जाती है कि ये अपने मैक्सिमम एक्सटेंट तक फुल होता है. अच्छा, अब ये बात समझाने के लिए मुझे एक कॉन्सेप्ट और बीच में लाना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट है लेवल का. सो ट्री के हम लेवल्स यूँ डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे बाय द वे वही वाली बात जैसे आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखा है कि कभी अरे का फर्स्ट एलिमेंट जीरोथ इंडेक्स कहलाता है और कभी फर्स्ट इंडेक्स कहलाता है. सो बिल्कुल उसी तरह से जो अरे का, जो ट्री का फर्स्ट लेवल है, उसको कभी हम जीरोथ लेवल कहते हैं, कभी फर्स्ट कहते हैं. फॉर द पर्पसेस ऑफ माई डिस्कशन आई विल जस्ट कॉल इट लेवल 1. सो दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2 एंड दिस इज लेवल 3. इस ट्री के 3 लेवल्स हैं. सो फुल बाइनरी ट्री वो है जो अपने सारे लेवल्स तक मैक्सिमम कैपेसिटी तक फुल हो फॉर द पर्टिकुलर एरिटी जो उसको हमने दी हुई है. सो इफ इट्स अ फुल बाइनरी ट्री, इट मीन्स कि वो अपने जितने भी लेवल्स तक है. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ फुल बाइनरी ट्री ऑफ 1 level. This is a full binary tree with 2 levels. And this is a full binary tree of 3 levels.
And similarly, you can draw a full binary tree of 4 levels and 5 levels and 6 levels and so on and so forth. So अब आपको fullness का concept पता लग गया कि fullness में, और आपको levels भी समझ में आ गए कि tree के levels क्या होते हैं. एक concept अब यहाँ जब समझ आ गया है तो और समझ लें. The height of a tree is just the maximum level number. So height of this tree is 3. Height of this tree is 1, and the height of this tree is 2. So अब आपको ये एक और concept मिल गया. Height is basically just the highest level number. It's the highest level number in the tree, and that's known as the height of the tree. ठीक है जी. So now you know levels, height, full binary tree. Let's move on and let's look at a few more concepts. एक कॉन्सेप्ट आप ट्रीज में और देखेंगे जो कि कॉन्सेप्ट है कंप्लीट का. अच्छा, ये जो है ना, ये बड़ी ऐसी टर्म है जो बड़ी कंफ्यूजिंग टर्म है, और लिटरेचर में भी ये मुख्तलिफ अंदाज से यूज होगी. मैं इसको यूं डिफाइन करने लगा हूं, जो सबसे ज्यादा कॉमन डेफिनेशन है इन डेटा स्ट्रक्चर्स कंप्लीट ट्री की. सो आपने बाइनरी ट्री देखा या एमरी ट्री देखा, फुल एमरी ट्री देखा जो कि अपने सारे लेवल्स तक फुल हो. नाउ कंप्लीट ट्री की क्या डेफिनेशन है? सो लेट्स से अ कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है. सो कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब ये है कि फर्स्ट मैं आपको एज्यूम करता हूं कि मैं एक बनाता हूं फुल बाइनरी ट्री ऑफ 3 लेवल्स, और मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं लेवल वाइज. सो 1 2 3 4 5 6 7. ये मेरा एक फुल बाइनरी ट्री है ऑफ 3 लेवल्स. कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ 3 लेवल्स क्या होगा? जो कि जितना भी बना हुआ है उसमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बन सकती हो विद अ फुल बाइनरी ट्री ऑफ द सेम हाइट, जितना भी वो बना हुआ है. सो अब मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो ज्यादा क्लियरली समझ आएगा. फॉर एग्जांपल, ये ट्री एक कंप्लीट ट्री है. व्हाई? बिकॉज इस नोड के कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है. ये भी कंप्लीट है बिकॉज यहाँ ये कॉरेस्पॉन्डिंग है. ये भी कंप्लीट है और फुल भी है बिकॉज इसकी पूरी कॉरेस्पॉन्डेंस बन रही है 1-to-1 सारे नोड्स के साथ, जो कि एक फुल ट्री के हैं ऑफ द सेम हाइट. अच्छा, फिर कौन सा वाला ट्री जो है वो फुल होगा? वो लेट्स से कौन सा ट्री ऐसा होगा जो कि कंप्लीट नहीं होगा? सो लेट्स अज्यूम दिस ट्री. दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. व्हाई? बिकॉज अब अगर मैं इसकी नंबरिंग शुरू करूं तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं बन सकेगी. आई गेट द 1 2 3 4 5, बट द 6 इज मिसिंग, and then you have the 7 here. So यहाँ पे 6 करना पड़ेगा. So ये इसने इसके corresponding कोई नोड नहीं लगा हुआ, लिहाजा it's not a complete tree. So in other words, आप ये भी कह सकते हैं कि a complete tree of height h minus 1 तक full tree होता है, यानी यहाँ तक ये full tree है, और उसके बाद hth लेवल के ऊपर ये लेफ्ट टू राइट फिल हो रहा होता है. ये बात समझ में आई? यूं भी कह सकते हैं कि अ कंप्लीट बाइनरी ट्री और अ कंप्लीट एमरी ट्री ऑफ हाइट h माइनस 1 तक का फुल एमरी ट्री होगा, और एथ लेवल के ऊपर यानी लास्ट सबसे निचले लेवल के ऊपर लेफ्ट टू राइट फिल हो रहा होगा. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. सो अब आपको कंप्लीट की डेफिनेशन भी समझ में आ गई कि कंप्लीट ट्रीज क्या होते हैं. ठीक है. सो नाउ आई थिंक वी हैव कवर्ड इनफ ग्राउंड हियर. बाय द वे, एक हाइट के साथ डेप्थ का कॉन्सेप्ट भी कवर होता है, और थोड़ा सा अगर हम उसकी तफसील में जाएं तो ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो हम डेप्थ देख रहे होते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो हम हाइट देख रहे होते हैं. लेकिन मैं इतनी ज़्यादा आप चीज़ों को कंफ्यूजिंग नहीं बनाना चाहता. वो जब कभी आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे किसी कोर्स के तौर पर तो वहाँ देख लेंगे. मैंने जिस तरह से अभी हाइट और चीज़ें डिफाइन कर दी, आई थिंक दिस इज सिंपल इनफ एंड क्लियर इनफ एंड ऑल्सो इनफ फॉर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर डिसीजन ट्रीज. अब हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रीज की बात कर लेते हैं, और हम इसको स्पेसिफिक टू बाइनरी ट्रीज कर रहे हैं, लेकिन ये गुफ्तगू भी अगेन एक्सपेंडेबल है टू हायर ऑर्डर ट्रीज. पर इससे पहले बल्कि मैं एक चीज और बात कर लूं, थोड़ा सा आपको एक दिमाग को क्विज करने के लिए. इज दिस अ बाइनरी ट्री? इज दिस अ बाइनरी ट्री? इज दिस अ बाइनरी ट्री? और अब आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे, और मैं आपको कंफ्यूज करना चाह भी रहा हूं. और is this a binary tree? सो अब देखें, इसके केस में तो कोई मसला नहीं, ये तो बाइनरी ट्री है. इसके केस में भी कोई मसला नहीं, हाईएस्ट एरिटी जो है वो 2 है, ये भी बाइनरी ट्री है. इज दिस अ बाइनरी ट्री?
अब मसला ये है कि अभी आपने एरिटी की डेफिनेशन ये की है that the highest degree of any node in that tree should be equal to 2 और highest out degree should be equal to 2. अब यहाँ फ़र्क आता है ग्राफ थ्योरी में और कंप्यूटर साइंस में. In terms of, if you just look at the graph, this is not a binary tree. If you look at just the graph, it's not a binary tree, and this is also not a binary tree. However, in computer science, अब अपने जहन को थोड़ा सा क्लास बनाने की तरफ ले आएं या स्ट्रक्ट डिफाइन करने की तरफ ले आएं. जब आपने क्लास बनाकर दो पॉइंटर डिफाइन कर दिए हैं ना, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का, तो उसके बाद फिर बाय डेफिनेशन ये सारे के सारे ट्रीज आपके जो है ना ये बाइनरी ट्री बन जाते हैं. तो ये बस सिर्फ मैं यहाँ ये मौजू खोल के बंद कर दूंगा, बस मैं इसको तफसील में नहीं जाऊंगा, जब कभी आप ये पढ़ेंगे तो वहाँ पे जाकर आप देख लीजिएगा. लेकिन ये सिर्फ सामने लाना इसलिए मकसद है कि कल को आप कहीं ये वाला ट्री बना हुआ देखें और इस पर लिखा हुआ ये बाइनरी ट्री है, तो आप अपना सर पकड़ के ना बैठ जाएं कि जी ये सर ने क्या पढ़ाया था कि हाईएस्ट एरिटी 2 होनी चाहिए. सो हाईएस्ट एक्चुअल एरिटी 2 होनी चाहिए या हाईएस्ट पोटेंशियल एरिटी 2 होनी चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ट्री बना दूं, ये कभी भी बाइनरी ट्री नहीं है किसी भी फॉर्म में, ना सीएस में और ना ही ग्राफ थ्योरी में. लेकिन ये वाला जो ट्री है ये ग्राफ के एंगल से अगर देखा जाएगा तो ये बाइनरी नहीं है, इसकी एरिटी 1 है और इस वाले की एरिटी 0 है. जबकि अगर हम कंप्यूटर साइंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हम कहेंगे भाई जो क्लास डिफाइन हुई हुई है वो दिखाओ, उसमें पॉइंटर कितने पड़े हुए हैं, 2 पॉइंटर पड़े हुए हैं या 1 पॉइंटर पड़ा हुआ है. अगर 2 पॉइंटर पड़े हुए हैं तो दैट मीन्स कि दिस कुड बी अ बाइनरी ट्री, दिस कुड ऑल्सो बी अ बाइनरी ट्री. ये ट्री अभी आपने ग्रो करना शुरू किया, खाली रूट इसकी बनाई है. ये ट्री आपने ग्रो करना शुरू किया और अभी खाली लेफ्ट चाइल्ड बनाया है. सो इट्स अ बाइनरी ट्री. ठीक है, तो ये बात खैर आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ. लेकिन अगर खाली मैं आपको ग्राफ बने हुए दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली देन यू विल जस्ट काउंट द एरिटी एंड जस्ट टेल मी इन दैट केस कि क्या है. तो एक बात आपको बड़ी अब तक वाजे हो रही होगी कि बहुत कुछ यहाँ पर ना when you study trees, so there is a lot that comes with the domain knowledge के context क्या है. आप arrows लगा नहीं रहे फिर भी directed समझ रहे हैं, ऊपर root बना रहे हैं, root के अंदर आने वाला edge कभी दिखा रहे हैं कभी नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वो होता नहीं है, किसी node से नहीं आता. तो ये सारी चीज़ें कुछ वो conventions of the field होती हैं जहाँ से चीज़ें आ रही होती हैं. ठीक है जी, अब ये आपको क्लियर हो गया. अब मैं खाली बाइनरी ट्रीज के एंगल से कुछ आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ. द नंबर of nodes at a level I of a, let's say, binary tree are at max कितने होंगे. किसी भी बाइनरी ट्री में at level I मैक्सिमम कितने नोड्स होंगे. सो फर्ज कीजिए मैं बाइनरी ट्री का ये एक बाइनरी ट्री ग्रो कर देता हूँ आपके लिए, and I want you to basically just tell me कि इसमें किसी भी लेवल के ऊपर, and you have the levels marked here 1 2 3 and let's say 4. so किसी भी लेवल के ऊपर मैक्सिमम नोड्स कितने हो सकते हैं. थोड़ा सा जल्दी से अपना पॉज करें वीडियो और खुद से इसका फॉर्मूला निकाल लें. कोशिश करें मुझे ना निकालना पड़े, आप उससे पहले खुद निकाल चुके हो. ठीक है, आपने पॉज किया, मैं आंसर रिवील करने लगा हूं. सो ये होंगे 2 raised to the power I minus 1. तो देखें लेवल 1 के ऊपर कितने नोड्स हैं, 2 raised to power 0. अगले पे कितने हैं, 2 raised to power I minus 1 यानी कि 2 raised to power 1 2 नोड्स हैं, यहाँ 1 नोड है. यहाँ पर 2 raised to power 3 minus 1 यानी 2 raised to power 2 4 नोड्स हैं. अगले लेवल के ऊपर जो हैं वो 2 raised to the power 4 minus 1 2 raised to power 3 यानी 8 नोड्स होंगे, यानी इन सब के दो चिल्ड्रन होंगे, and so on and so forth. So that's simple enough, right? So at any level, the maximum number of nodes in a binary tree is 2 raised to the power I minus 1, where I is the level number. अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि एमएरी ट्री के लिए यही बात निकाल दें, तो देन इट वुड बी, खुद पॉज करें, सोचें और फिर बताएं इस फॉर्मूला में क्या तब्दीली आएगी. किसी भी लेवल के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एमएरी ट्री में कितने होंगे. पॉज किया आपने, अब मैं आंसर रिवील करने लगा हूँ. m raised to the power I minus 1. So m raised to the power I minus 1 would be the maximum number of nodes at level I in an m-ary tree, assuming that the levels start from 1. अब आप समझ सकते हैं कि अगर मैंने लेवल्स को 0 से शुरू किया होता तो फिर ये -1 खत्म हो जाता. तो मैं एक कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूँ, अगर आप कोई दूसरी बुक फॉलो करते हैं तो कन्वेंशन वुड चेंज टू अ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स. ओके, जब आप लेवल के हिसाब से अब नोड्स निकाल चुके हैं तो लेट मी आस्क यू अ डिफरेंट क्वेश्चन, and let me draw a tree but ask you a question at the same time. What's the maximum number
of nodes in a binary tree of height h. What's the maximum number of nodes in a binary tree of height h? अपने तौर पर निकालें, पॉज कर लें और निकालें कि एक बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h के मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे. आई होप कि आपने पॉज किया. लेट मी जस्ट गिव यू द फॉर्मूला. इट्स 2 raised to the power h minus 1. अब माइनस वन नीचे है, सो दैट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h. फॉर एग्जांपल इस ट्री में आप देखें, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 3. सो 2 raised to the power 3 minus 1 which is 7. So 1 2 3 4 5 6 7. अगर एक लेवल इसको और आप ग्रो करवा दें तो कितने और बढ़ जाएंगे? 8 और बढ़ जाएंगे. ठीक है, तो ये 15 हो जाएंगे. ठीक है, और we will get the same 2 raised to the power 4 minus 1, so that 16 minus 1 is 15. So now you also know कि height अगर ट्री की h है, एक बाइनरी ट्री की हाइट h है, तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स जो हैं, टोटल नोड्स, वो 2 raised to the power h ऊपर और नीचे -1 आएगा, इतने होंगे. अच्छा, यही चीज अगर मैं आपसे m एरी ट्री के बारे में पूछूं तो इट्स गोइंग टू बी m raised to the power h -1. सो बहुत आसानी के साथ ये फॉर्मूलाज जो हैं वो डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर अडेप्ट कर जाते हैं. अच्छा जनाब, अब आपके पास क्योंकि ये रिलेशनशिप आ गया है कि n is equal to, where n is the maximum number of nodes in a tree of height h, तो इसी रिलेशन को हम दूसरी तरह से भी देख सकते हैं. So n is equal to 2 raised to the power h minus 1, where n is the maximum number of nodes in a binary tree of height h. क्लियर हो गया? अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इसको हाइट की टर्म्स में इस रिलेशन को निकालें तो ये क्या बनेगा? सो 1 दूसरी तरफ चला जाएगा, ये n+1 हो जाएगा और 2 raised to the power h हो जाएगा. सो 2 raised to the power h को ख़त्म करने के लिए I'll take log base 2 to both sides and it's going to become, okay, let me do the steps for you for once, ताकि बाद में कोई confuse ना हो. This is basically an important relationship, and so this will become h is equal to log to the base 2 of n+1. ठीक है, ये n+1 वगैरह वो उसी तरह, क्योंकि लेवल 1 आपने डिफाइन किया था फर्स्ट लेवल को. ठीक है, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट and the total number of nodes of a binary tree, or rather the maximum total number of nodes of a binary tree. अगर इसी को हम रिप्लेस कर दें m array tree से तो ये क्या बनेगा? पॉज करें, आंसर निकालें और मैं लिखने लगा हूँ. h is equal to log to the base m of n+1. For an m array tree, this is the relationship between the height and the maximum number of nodes in an m array tree of height h, yes, height तो हमने रिलेशन उसी के साथ निकाला है. सो ठीक है जी, ये क्लियर हो गया आपको. सो नाउ यू नो दिस रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट एंड द मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन एनी ट्री, चाहे वो बाइनरी हो, उसकी एरिटी चाहे 2 हो या उसकी एरिटी कोई जनरल केस m हो. फाइनली जाते जाते आपको एक रिलेशनशिप में और देकर जाना चाहूँगा, एंड दैट्स द रिलेशनशिप बिटवीन दी, if you assume a full binary tree, then what's the relationship between n2 and n0. हमें मालूम है कि फुल बाइनरी ट्री के अंदर सिर्फ n2 और n0 ही एग्जिस्ट करते हैं. सो फॉर अ फुल बाइनरी ट्री हमारे पास n2 और n0 के बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा? सो थोड़ी देर के लिए ज़रा पॉज करें, खुद से सोचें, कैन यू कम अप विद द रिलेशनशिप. इस ट्री को देखें और n2 और n0 के बीच में, n2 क्या हैं? वो सारे नोड्स जिनकी आउट डिग्री 2 है, और n0 क्या हैं? जिनकी आउट डिग्री 0 है, यानी लीव्स और इंटरनल नोड्स. सो जो लीव्स नहीं होते ना, उनको हम इंटरनल नोड्स कहते हैं. दीज आर ऑल इंटरनल नोड्स. और लेट्स अज्यूम मैं यहाँ पर लीव्स बना देता हूँ. सो इन सबको हम लीफ नोड्स कहते हैं और एक्सटर्नल नोड्स भी कहते हैं. सो लीव्स और इंटरनल नोड्स के बीच में क्या रिलेशन है? बाय द वे, अगर ट्री ऐसा भी हो ना, ये थोड़ा सा मैंने ये टर्म शायद पहले नहीं यूज़ की, मैं ये भी आपको सिखा दूं. ट्री ऐसा भी हो तो यहाँ पर इंटरनल नोड्स कौन कौन से हैं? ये वाले. और एक्सटर्नल नोड्स या लीव्स कौन कौन से हैं? ये वाले. ठीक है, तो अब फुल बाइनरी ट्री के लिए मुझे आप एक रिलेशनशिप निकाल दें बिटवीन लीव्स एंड इंटरनल नोड्स. ठीक है, और जाहिर है इंटरनल नोड्स अब n2 ही हो सकते हैं, ये हमने रूल बना दिया था फॉर अ फुल ट्री. सो आई होप आपने इसको निकालने की कोशिश की और आपके पास जो रिलेशनशिप निकला है वो है n0 is equal to n2 plus 1. एंड यू कैन क्लियरली सी, अगर आप खाली इस हाइट तक का ट्री देखते, इसके 4 लीव्स हैं और इसके 3 इंटरनल नोड्स हैं. सिमिलरली जब मैं अगले लेवल पर ले गया हूँ तो इसके 8 लीव्स हैं
और 7 इंटरनल नोड्स हैं. सो दिस रिलेशनशिप बिटवीन the n0s and the n2s will hold. ये सारी की सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आगे जाकर जब मैं डिसीजन ट्रीज में या इससे पीछे के ट्रीज के अंदर मैं जिस किस्म के लॉग वाले रिलेशनशिप्स लाता रहा हूँ तो उनको समझने में, अपने तौर पर समझने के लिए ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी. और जैसा कि मुझे हमेशा जाते जाते याद आता है एक टर्म तो मैं आपको बताना भूल ही गया. सो आपको मैं एक और चीज़ शो करता हूँ. लेट्स अज्यूम सी दिस. सो this is a tree, and then you can also say it's a binary tree. Let me draw another tree. So you have another tree and you have a third tree. So now this whole thing together is known as, guess what? Forest. Yes. So that's known as a forest. So a forest is essentially just a collection of trees. A forest is a collection of trees. So it can have, there is no upper limit, it can have any number of trees. So a forest is just a collection of trees. It's a simple concept, but ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आगे जाकर मैंने आपको decision trees के बाद at some point we'll also discuss random forests. So आपको पता होना चाहिए कि forest किस चीज़ को कहते हैं. Similarly, एक आखिरी बात बस, सिर्फ वो जो मैं कंप्यूटर साइंस पर्सपेक्टिव की बात कर रहा था, इस डब्बे के अंदर देखिए आपको कितने बाइनरी ट्रीज नजर आ रहे हैं. How many binary trees do you see inside the square box? In here, none, right? But in computer science, if you have defined the class, और उस क्लास में आपने डिफाइन कर दिए हैं कि पॉइंटर्स कितने चिल्ड्रन के निकल रहे हैं, सो दिस इज स्टिल अ ट्री. सो अ ट्री कुड बी एम्प्टी. So computer science के एंगल से even you have a tree here, just depending on the potential कि आपने null pointer पे जो है वो root को अगर initiate कर दिया है तो even this could be a tree. So अगर आप confused इससे पहले नहीं थे तो आप ज़रूर हो गए होंगे कि मैंने आपको ये भी कहा था कि जी ये भी binary tree है और ये भी binary tree है और जो खाली है ये भी एक binary tree हो सकता है. So कहने का मेरा सिर्फ मकसद ये है कि अगर आपने इसकी class define की हुई है tree की, जिसके अंदर आपने let's say 2 pointer define किए हुए हैं, PTRs to the left और let's say लेफ्ट और राइट आपने 2 पॉइंटर्स डिफाइन किए हुए हैं 2 चिल्ड्रन के, तो लिहाजा अब ये बाई पोटेंशियल यानी हो सकता है इससे ट्री. सो बाई पोटेंशियल अब ये एक बाइनरी ट्री बन चुका है. और इस क्लास का जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो नल पे भी इनिशिएट हो सकता है. आपने अभी उसको नहीं शुरू किया, पहला ट्री आपने नहीं बनाया, अभी वो किसी नोड की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा. इवन इन दैट केस इट्स एन एम्प्टी ट्री, जस्ट लाइक यू कैन हैव एन एम्प्टी लिंक लिस्ट. तो होपफुली आप साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे होंगे, जो जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा हुआ तो उन्हें मेरी ये वाली बात समझ में आ रही होगी. बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस आई वांटेड टू ऐड दैट एज वेल. ठीक है जी, अब मिलते हैं इंशाल्लाह डिसीजन ट्रीज के प्रॉपर फर्स्ट डिस्कशन के अंदर.